Hello everyone, my name is Jainil and I welcome you all to Echo with JP. This is the last and the final part of our second chapter, which is dual effects of transactions and types of accounts. In the past four classes or five classes of this chapter, we have discussed topics like business transactions, economic transactions, non-economic transactions, cash and credit transaction. We also identified whether the transaction is on cash or on credit, and we also identify whether a transaction is economic or non-economic. And further, we have discussed topics like voucher. We have discussed types of accounts in which we have discussed personal accounts, real accounts, and nominal accounts. And in this video, we are going to discuss about rules of debit and credit of accounts. So let us start with it. Now, types of accounts. We all know we have discussed the types of accounts in the past class. In the last class of types of accounts, we have discussed personal accounts, real accounts, and nominal accounts. So now let us look at the debit and credit rules of the types of account. Starting with first, the personal account. It says that first is debit the receiver, credit the giver. Let me read the rules first for you, then I am going to explain each account specifically and in a very brief way. Okay. Second is the real account. It says that debit what comes in, credit what goes out. These are really important rules. You must memorize it. The third one is nominal accounts. It says that debit expense and loss, credit income and gain. These are the three rules of the debit and credit. So now let's move on to personal accounts. What is personal account? I have already discussed in the last class of this chapter, but I'll again explain it for you. Two types of person are included in personal account. Natural person or legal artificial person. Businesses undertakes transaction with the persons who takes benefit from the business or give benefit to the business. पर्सनल अकाउंट्स क्या है? मतलब इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक तो नेचुरल पर्सन होगा जो लाइव पर्सन होगा और दूसरा हो सकता है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. हमने एग्जांपल में देखा था कि लेट्स से मेरा नाम जैनिल है, तो एक तो हो जाएगा जैनिल अकाउंट, जैनिल, जैनिल्स अकाउंट. ओके, तो वो क्या है? आई एम अ नेचुरल पर्सन, आई एम अ लाइव पर्सन. बट लीगल आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आएगा? वहां पे था कि ज्योत्स हाई स्कूल अकाउंट. अभी वो क्या है? वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, पर वो एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको भी हम पर्सनल अकाउंट में ही क्लासिफाई करते हैं. रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. The rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. What does that mean? That if a person has taken the benefit of business, debit his debit his account, and if person has given benefit to business, he credit his account. In brief, debit the receiver account and credit the giver account. Let us understand this matter with following illustration. इसके अंदर क्या होता है कि जो भी पर्सन है बेनिफिट, बिजनेस का बेनिफिट लेता है, उसको क्या करते हैं? उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं. और जो भी बिजनेस को बेनिफिट देता है उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं? उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं. ओके. यहाँ पे 8 एग्जाम्पल है अलग अलग ट्रांजेक्शन के. मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको रीड करें, वीडियो को पॉज करके. रीड करने के बाद आप इसके आंसर्स खुद सोचिए क्या हो सकता है, और इसके आंसर्स मैं आपको, आप जब वीडियो पॉज करके आप जब रीड कर लोगे उसके बाद मैं बता देता हूँ. आप एक बार चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो. ये 8 अलग अलग इलुस्ट्रेशन हैं. हाँ. हाँ, और एक नोट भी है यहाँ पे कि इन पर्सनल अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन द नेम ऑफ पर्सन इज एज सेंटर. ये पर्सनल अकाउंट के ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो पर्सन का नेम है वो सेंटर रहता है. आ जाते हैं आंसर्स पे.
चलो रीड करते हैं, हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था? गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20, गुड्स सोल्ड वर्थ 20,000 सोल्ड टू जयश्री। ओके, क्या किया कि गुड्स जिसकी वर्थ 20,000 रुपए है, उनको हम उसको हमने सेल किया जयश्री जयश्री को। ओके, तो इसके अंदर बिजनेस का बेनिफिट कौन ले रहा है? जयश्री ले रही है। अब जो भी बिजनेस का बेनिफिट लेगा उसको क्या करेंगे हम, उसके अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। सही बात है। ओके, चलो देख लेते हैं कि गुड सोल्ड टू जयश्री, जयश्री इज बेनिफिट रिसीवर, हर अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिंपल। इसके अंदर हमारा जो बिजनेस है उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? जयश्री ले रही है। तो क्या होगा, हम जयश्री के अकाउंट को डेबिट करेंगे, सिंपल चीज, समझ में आ गया। दूसरा है 10,000 रुपीज डिपोजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अंदर क्या हो रहा है कि 10,000 डिपोजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक इज बेनिफिट रिसीवर। सही बात है, हम जो भी पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक को, तो वो उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो लोग एक रिसीवर हो जाते हैं हमारे पैसे के, दे आर द बेनिफिट रिसीवर। हमने पढ़ा कि जो भी बिजनेस का बेनिफिट लेता है उसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। थर्ड है हमारा 30,000 पेड टू भूमिका। अब देखो, 30,000 रुपए हमने भूमिका को पे किए। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी सेम चीज है कि हमारे जो पैसे हैं उससे क्या है, भूमिका एक बेनिफिट रिसीवर है। तो क्या होगा, जब भी कोई बिजनेस का बेनिफिट लेता है, इसके अंदर कोई बिजनेस नहीं है पर हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो वो एक रिसीवर है, शी इज द बेनिफिट रिसीवर, सो हर अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिंपल थिंग। Now let us come to the fourth point. Rent receivable from Shilpa 2,000 rupees. इसका मतलब क्या हुआ कि शिल्पा जो है उसने हमारे बिजनेस हैज टेकन सर्विस फ्रॉम बिजनेस, हर अकाउंट विल बी डेबिटेड। इसके अंदर क्या हो रहा है कि शिल्पा ने, हम रेंट, समझो हमारा रेंट है, हम घर को रेंट पे रखा है, तो उसका रेंट तो 2,000 रुपये वो हमको पे करती है, पर वो रेंट, उसका बेनिफिट कौन रिसीव करती है? शिल्पा करती है। समझ में आ गया, हमारा जो है जिसकी वजह से हमको पैसे मिल रहे हैं, और उसका बेनिफिट कौन रिसीव करता है? शिल्पा करती है। तो क्या होगा, उसका जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। पॉइंट पे आ जाते हैं हमारा, गुड्स वर्थ 20,000 परचेज फ्रॉम जयश्री। उसके अंदर क्या था, गुड्स सोल्ड 20,000 टू जयश्री, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स वर्थ ऑफ 20,000 हम परचेज कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हो गया कि जयश्री का जो भी गुड्स का बिजनेस है उसका हम बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं। और कौन हमें बेनिफिट दे रहा है? हमको बेनिफिट दे रही है जयश्री, बिजनेस का हमको गुड्स दे रही है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जयश्री का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, जयश्री इज बेनिफिट गिवर। समझ में आ गया, जयश्री जो है वो हमें बिजनेस का बेनिफिट दे रही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम जयश्री का अकाउंट क्रेडिट करेंगे और हमारा अकाउंट डेबिट करेंगे। ड्यूअल ट्रांजेक्शन आ गया। पहला तो क्या आ गया कि जयश्री का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ क्योंकि वो बेनिफिट गिवर है, और हमने रिसीव किया, तो वो क्या हो गया, हम बेनिफिट रिसीवर है तो हमारा अकाउंट डेबिट होगा। समझ में आ गया। आप इसको समझो तो बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना है कि आपको एक बार ट्रांजेक्शन को अच्छे से रीड करना है, उसके अंदर देखना है कि बिजनेस का बेनिफिट कौन रिसीव कर रहा है और बिजनेस का बेनिफिट कौन दे रहा है। सिक्स पॉइंट पे आ जाते हैं हम हमारे, 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम पहले तो ऊपर वाला एग्जांपल देखो कि इसके अंदर हमने डिपॉजिट किए थे, इसके अंदर से हम ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम क्या हुआ, बैंक है जो बेनिफिट गिवर है, हमको बेनिफिट दे रही है वो उनके बिजनेस का कि हम उनमें से पैसे विड्रॉ करें। इस केस में क्या होगा कि अकाउंट उनका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का वो क्रेडिट क्रेडिट होगा। समझ में आ गया। ये जो दो सिंपल चीज है कि बेनिफिट रिसीवर वो हो जाएगा डेबिट, और बेनिफिट
गिवर हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आ गया? ओके। अब आ जाते हैं हमारे 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट क्या कहता है? 30,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका। क्या हो रहा है? अब हम भूमिका से पैसे ले रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होगा? हम भूमिका जो है वो बेनिफिट गिवर है और हम बेनिफिट रिसीवर है, तो इस केस में क्या होगा कि भूमिका का जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आ गया? ओके। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो डाउट करके, तो मैं उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसका आंसर समझा दूंगा। 8th, रेंट पेएबल टू शिल्पा 2,000 रुपीज। इस केस में क्या हो रहा है कि हमको शिल्पा को 2,000 रुपये देने हैं। इसके अंदर हमने क्या किया कि शिल्पा का जो घर था वो हमने रेंट पे रखा है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि शिल्पा इज द बेनिफिट गिवर। इस केस में क्या होगा, वापस शिल्पा का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप, which is real accounts. Real accounts also can be categorized into two categories. First is goods account and second is asset accounts. Transaction takes place pertaining to goods and assets. Pertaining to goods and assets. Either goods or an assets come in or goods or an asset goes out. ये क्या रियल अकाउंट्स क्या है? हमें लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा है रियल अकाउंट्स क्या है। उसके अंदर दो टाइप होते हैं कि पहला होता है गुड्स अकाउंट और दूसरा होता है असेट्स अकाउंट। अब रूल ऑफ रियल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आ गया? अभी ये रियल अकाउंट का है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नए नए चीज पढ़ रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, बट आप जो पुरानी चीज हम पढ़ चुके हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट हमने पढ़ा, उसको आप रिकॉल करते जाओ जैसे जैसे पढ़ रहे हो, जैसे हम आगे आगे चैप्टर में बढ़ते जाते हैं, ताकि आप जब एक्चुअल क्वेश्चन आए तब हमको कुछ भी डिफिकल्टी ना हो। ओके। If goods or an assets come in business, debit respective goods or asset account. If any goods or assets are coming into the business, we should debit the respective account of goods or an asset. And if goods or an asset goes out from business, अगर कोई भी goods और asset है business से जा रहे हैं, तो हमको वो अकाउंट को क्रेडिट करना है। We should credit respective goods or asset account. Let us understand this matter with following illustration. जैसे हमने पर्सनल अकाउंट के अंदर कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, ऐसे ही हम रियल अकाउंट्स के लिए पढ़ लेते हैं। ओके, आ गया। गुड्स ऑफ 20,000 परचेज्ड फ्रॉम रोहिणी। गुड्स ऑफ 20,000 परचेज्ड, इसके अंदर क्या हो रहा है? आप एक बार रूल को रिकॉल करो। क्या था हमारा रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स ऑफ 20,000, इसके अंदर क्या आ रहा है? गुड्स या असेट हमारे पास आ रही है, बिजनेस में आ रही है। देखो, गुड्स ऑफ 20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी, गुड्स कम्स इन, सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा कि, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, गुड्स कम्स इन इक्वल टू डेबिट, ये था गुड्स या असेट। गुड्स या असेट हमारे पास आ रहे तो हम वो रिस्पेक्टिव अकाउंट को डेबिट करेंगे। अभी इसके अंदर क्या है हमारा रिस्पेक्टिव अकाउंट? इसके अंदर हमारा रिस्पेक्टिव अकाउंट है परचेज अकाउंट। समझ में आ गया? हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। दूसरा एग्जांपल है गुड्स ऑफ 8,000 रुपीज परचेज फ्रॉम सलामा ऑन कैश। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी क्या आ रहा है? गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, गुड्स ऑफ 8,000 आर परचेज्ड फ्रॉम सलामा ऑन कैश, गुड्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। इट्स द सेम एग्जांपल व्हाट वी लर्न इन द फर्स्ट वन। ओके, 20,000 रुपीज, इसके अंदर सिर्फ वो क्रेडिट पे था और ये कैश पेमेंट है और ये क्रेडिट पेमेंट है, और ये 20,000 रुपए था, ये 8,000 रुपए है, पर
एट द एंड क्या हो रहा है, परचेस अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड कहता है फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राजेश। फर्नीचर क्या है, एक असेट है, कितने रुपीस की है वो, कितने वर्थ है उसका, 10,000 रुपए। परचेज्ड फ्रॉम राजेश, राजेश से हम परचेज कर रहे हैं। इसके अंदर भी क्या होगा, जो फर्नीचर अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर एक असेट है, वो हमारे पास आ रही है। डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, समझ में आ गया। तो हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि वो हमारे पास आ रही है, इट कम्स इन टू द बिजनेस। फोर्थ, 20 मशीन ऑफ ₹20,000 परचेज्ड ऑन कैश, सेम चीज। इसके अंदर भी क्या होगा बताओ। इसके अंदर भी जो मशीन अकाउंट है वो, मशीन इज एन एसेट राइट, असेट हमारे पास आई तो उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया। फिफ्थ, गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड टू रोहिणी। ये वाला जो एग्जांपल है ये सबसे अलग है। क्यों, सब में परचेज 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 परचेज, इसके अंदर क्या है, सोल्ड। क्या होगा, हम क्या करते थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हो रहा है, हमारे पास जो गुड्स है वो हमारे पास से जा रहे हैं, तो हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट क्या हो जाएगा, गुड्स जा रहे हैं तो वो सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। समझ में आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं आपको जो अभी तक दोनों रूल्स पढ़ा है वो समझा देता हूँ, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। हमने पहला पढ़ा पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने देखा नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, फिर हमने उसका रूल देखा कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर हम आ गए रियल अकाउंट्स पे। रियल अकाउंट्स के अंदर हमने दो टाइप के देखे, गुड्स और गुड्स अकाउंट या असेट्स अकाउंट। इसके अंदर हमने रूल पढ़ा कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे बिजनेस के पास आ रही है उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट डेबिट करो, जो हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, असेट्स जा रहे हैं, उसको क्रेडिट करो। अब आ जाते हैं हम नॉमिनल अकाउंट्स पे। नॉमिनल अकाउंट्स, अंडर नॉमिनल अकाउंट्स ड्यू टू ट्रांजेक्शन आइदर इनकम रियलाइजेस और एक्सपेंस इंकर्स। नॉमिनल अकाउंट जब हमने लास्ट वीडियो, जो हमारा लास्ट क्लास था उसके अंदर पढ़ा था, तो क्या देखा था, एक तो इनकम, अकाउंट्स ऑफ इनकम होता है और एक अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस होता है नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। एंड ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। ओके, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। If there are expenses and losses for the business, debit the respective account. If there are income and gains for the business, credit the respective account. Now, let us understand this matter with following illustrations. सबके अंदर हम एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे ताकि हमको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, 5,000 पेड फॉर सैलरी। अब क्या है, 5,000 है वो, हम किसी को सैलरी के लिए पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो वो क्या हो जाएगा इस केस के अंदर कि उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट जो है सैलरी अकाउंट, वो हम डेबिट करेंगे। इसके यहाँ पे एकदम प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है, पर मैं भी जो समझा रहा हूँ वो सेम ही है कि 5,000 रुपीज पेड फॉर सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। दूसरा है 3,000 पेड फॉर रेंट। रेंट के लिए हमने 3,000 रुपए पे किए, वी पेड 3,000 फॉर रेंट। 3,000 rupees is an expense for us. What we do, if there is an expense, we debit the respective account. Now this 3,000 rupees which we have paid for rent is an expense, so the rent account will be debited. I hope it's clear to all. Okay, let's come to the third. Paid telephone bill 2,000 rupees. Now paying a telephone bill of rupees 2,000 is also an expense for us, right? We are giving the money for the telephone bill. In this case, we will debit the respective account. The telephone bill account will be debited. It is very simple. If there is expense or loss, we debit.
कहीं पे भी आपको लग रहा है यहाँ पे बिजनेस का लॉस हुआ है, यहाँ पे बिजनेस का कुछ भी एक्सपेंस हुआ है, या फिर हाँ मतलब उन केस में क्या हो जाएगा, उसका जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, जैसे हमने ये 3 केसेस में पढ़ा। और अगर वहां पे इनकम है या गेन, तो क्या हो जाएगा, उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके। आ जाता है फोर्थ पे, बेड डेब्ट्स इंकर्ड फॉर 3,000 रुपीज, और फॉर 3,000 रुपीज बेड डेब। बेड डेब्ट्स क्या है, हमारे लिए एक लॉस है। अब ये लॉस है तो किसके अंदर हम उस अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा कि उसका जो बेड डेब्ट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। एंड द फिफ्थ वन इज ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑफ 2,500 रुपीज। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास इनकम आ रही है, ब्रोकरेज है, 2,500 रुपये की ब्रोकरेज हमें रिसीव हुई। जब हमको रिसीव होती है तो हम क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इनकम है ना वो हमारी, अब तक सब एक्सपेंस चल रहे थे, पेड, पेड, पेड एंड बैड डेब्ट्स इंकर्ड, ये तीन एक्सपेंस थे, और ये हमारा क्या था, लॉस था। ठीक है, सब में डेबिट कर देते, पर इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा हमारा गेन हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, हम ब्रोकरेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। Now that is all for today's video. We are now completing this. This is the last video for the second chapter, dual effects of transaction and types of account. We are concluding this chapter, and we are going to start with GST. There is one very interesting topic related to GST. We are going to start with that. I hope you all like this video, and thank you for spending your valuable time watching my video. If there is any doubt you want to ask me, you can leave it in the comment section. I'll reply it to you personally, or I'll make a short video while explaining the doubt. And please consider liking my video and subscribing if you loved it. Thank you.